which once lit will never dim. Yoga is a light which once lit will never dim. The better you practice, the brighter your flame. With these inspiring words, I, Nikita Meghani, welcome you all to this extremely enlightening session on Light on Yoga organized by Kirorimal College Alumni Network on the eve of International Day of Yoga, celebrated every year on 21st of June. We have with us today Ms. Rishika Vanjani, who is an experienced coach, rendering her services free of cost to help students in these tough times. It's a pleasure to have you here, ma'am. I will now request Dr. Seema Joshi, Staff Coordinator, Kirorimal College Alumni Network, to address the gathering. Thank you, Nikita. Dear all, good evening. As you know, India is a youthful country. It is natural for youth to have the desire to plan, the irresistible urge to act, the enthusiasm to conceive, the energy to work, along with their natural impatience at all the insufficiencies and ugly defects that they find in the world all around. To channelize these resources positively amidst the COVID crisis, we at Kirorimal College Alumni Network thought that it will be highly appropriate if we organize a practical online session on yoga comprising of micro exercises, a few asanas, pranayam, and a small meditation following the protocols of the Ministry of Ayush, Government of India, on the eve of 7th International Day of Yoga on June 20th, 2021. Strange it may seem, the one subject which everyone admits should be taught first and taught thoroughly, namely how to keep healthy, remained largely neglected for long. We usually stuff our children with knowledge, but as common sense would suggest, and the pandemic has made us realize even much more, that this is high time to determine the relative value of knowledge. The pandemic has forced us to think and decide what is useful, real, and effective over the non-useful, conventional, and ornamental. It hardly needs to be pointed out that the very care and knowledge of the body, which forms the basis of and on which depends activities of a being, should be considered subject of vital personal importance, and any knowledge leading to its well-being should be treated as essential and should therefore be imparted first. As such, the gift of knowledge leading to a good health came to be regarded by the ancient medical authorities in India, for example, Charak Sahinta, as an act of charity par excellence. It was also widely recognized that for the health of the body, mind, and soul, there is no science greater than yoga. And further, its propagation is the highest form of service one could render to humanity. With this bigger purpose in mind, we at Kirorimal College Alumni Network thought of organizing a live yoga session on the eve of 7th International Day of Yoga for our current students, alumni, parents, faculty members, and non-teaching staff, and other family members of our faculty and non-teaching staff. Just let me take you down the memory lane on this auspicious occasion of International Day of Yoga. We can recall that the noble idea of Yoga Day was proposed by our Honorable Prime Minister Narendra Modi in the UN General Assembly 7 years back. It was for the first time that such an idea had been proposed and implemented by any country in the UN body in less than 90 days. UN General Assembly, with support of more than 170 countries, adopted an India-led resolution declaring June 21st as International Day of Yoga in 2014, recognizing that yoga provides a holistic approach to health and well-being. This initiative provides a testimony to the fact that yoga enjoys cross-cultural and universal appeal. The 5,000 years old saga of yoga no longer can be seen as just a practice, but it is becoming a lifestyle and a culture.
This indeed is the progression of yoga over the last few years. We have gathered here today to listen to a young yoga coach from Gujarat State Yoga Board who will enlighten us on the benefits of yoga and also introduce us all to Sukshma Kriyas, asanas, pranayam, and a small meditation which will enable us to maintain our physical well-being. And if practiced consistently, gradually we too can establish tuning between our body, mind, emotions, and spirit, so essential for realizing ourselves. Let me emphasize that this virtual celebration of yoga, chosen by Kirorimal College Alumni Network by showcasing India's heritage and benefits of yoga, is in perfect alignment with the theme of International Day of Yoga 2021, that is, be with yoga, be at home. I welcome young yoga coach from Vadodara, Ms. Rishika Vanjani, who volunteered her services on this auspicious day for ensuring the well-being of all the participants and especially our students. Now I request our principal madam, Professor Vibha Singh Chauhan, who is inspiration behind this event, to welcome our young yoga coach along with the participant. Over to you, ma'am. Thank you very much, Dr. Joshi, for that very enlightening and informative and welcoming little speech that you just gave. I'm grateful to you for starting it and initiating the program today. My thanks are due to many people. Under the label of Alumni Network, actually, there are several young people who are our alumni, young men and women from various fields of lives, who have come together and have seen that the college, the Kirorimal College Alumni Network becomes a reality and is also active in areas that are extremely relevant to all of us. The Alumni Network had a series of lecture for more than a month during the month of our foundation, the College Foundation Day month. Extremely enriching and helpful. And now they have come up with this 2-day program on yoga, and have brought together on both days concepts which are very focused and which are, I'm sure, going to help us in balancing our lives activities both inside and outside. The program, the coordinator, the staff coordinator of Alumni Network, Dr. Seema Joshi, has been most energetic and excellent at organizing our alumni and the Alumni Network. My thanks to all the members of Alumni Network who are here, and if they are not here, we hope that they will engage with us and connect with us soon. And also to Dr. Seema Joshi for taking this initiative and making this possible. Thanks are due to our guest speaker, our guide, and somebody who is an expert in Ashtanga Yoga, Miss Rishika Vanjani, who has agreed to come and address our students. And from the program and from what Dr. Joshi has just elaborated, it deals with various aspects of our physical, mental, and emotional lives. And also makes it very clear that our body and our minds and our hearts and souls, if you believe in souls, they are made up of both very tiny small stirrings as well as the major
actions and countenance that are obvious to us. And yoga connects all these various facets of us to each other. My thank you, Madam Vanjani, for sparing your time and coming to talk to our students. What is also very, very fortunate in some sense. We have had a very difficult 1 year with the pandemic and especially the 2 waves. But something which is very fortunate is that we have found a way to connect digitally. And this would have happened anyway, but maybe because of the necessity and because of the need to connect, it has got accelerated and we are here together while being distanced. In this digital connection, actually, what is fortunate that we get to meet people like Madam Vanjani, which we may or may not have the opportunity of meeting physically. But we have met people of great expertise come and talk to us. And especially since it is Yoga Day, yoga was something which was seen as an individual attempt and exercise, which people did by themselves and probably in small groups. But it is this digital connect that has made it possible for us to get connected to people far and wide. And of course, the institution of the International Yoga Day has increased our awareness and popularity, and digitally made it in India, the pandemic made it possible, and that was a kind of something which grew out of necessity. However, I think we have taken advantage of it and we should continue to further take advantage of it and move on, connect, be safe and move on. This last year has been traumatic in every way for many of us, most of us. And one way to come out of it is to stabilize our insides along with our outsides. And I think that is what we are looking forward to in today's session. So once again, very, very welcome, Madam Vanjani, and many thanks to Dr. Seema Joshi, our members of the Alumni Network, all our other participants. It's a pleasure to have you. And I'm sure you'll go back enriched after this session. Thank you very much. Thank you for your kind words, ma'am. Taking it from here, I will now like to introduce our guest for the session. Currently serving as coach in Gujarat State Yoga Board, Ms. Rishika Vanjani did her master's in Ashtanga Yoga from Lakulesh Yoga University in 2020. She has also completed Yoga Teachers Training course from Yogi Niketan. With significant experience as a yoga instructor, she has conducted various corporate sessions in organizations like SGS Private Limited and Atos Global IT Solutions and Services, and has also been an active volunteer in International Yoga Day sessions and camps. We welcome you, ma'am, and look forward to your session, which will be conducted in Hindi. Good evening. Am I audible, ma'am? Yes, you are. Good evening, everyone. आज हम यहाँ पे 7th इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए सेलिब्रेशन से पहले जान लेते हैं थोड़ा कि योग का मतलब क्या होता है। योग की कई परिभाषाएं हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, योगः कर्मेषु कौशलम, यानी कि कुशलता के साथ कर्म को करना ही योग है। इसके अलावा महर्षि पतंजलि जी ने अपने पातंजल योग शास्त्र में बताया है,
योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। बट हम इसको आज बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से जानते हैं कि योग क्या है। योग का मतलब होता है हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ को हेल्दी रखना, उसी को योग बोलते हैं। आसनास के जरिए हम अपने फिजिकल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन के जरिए हम अपने इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को हेल्दी रख सकते हैं। और अगर जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल अगर हमारे और स्पिरिचुअल लेवल हमारे हेल्दी रहते हैं तो हमारा सोशल लेवल अपने आप हेल्दी हो जाता है। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक प्रेयर के साथ और 3 ओंकार के साथ आज के प्रेयर की शुरुआत करते हैं। प्रेयर करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक आसन में या तो सादी पलाथी में बैठ जाएंगे या तो फिर अगर जो आप पद्मासन बांध सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से दोनों पांव से पद्मासन बांध लेने हैं। अगर आप पद्मासन नहीं बांध सकते हैं तो आप सादी पलाथी में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों से इस तरह से ध्यान मुद्रा बना देनी है और उसको रख देना है घुटनों पे। कमर ऐसे रोल की हुई नहीं, कमर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगी। चेस्ट को ओपन अप करते हुए, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए आंखों को हल्के से बंद कर देना है। एक लंबी और गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओंकार शुरू करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाकर पामिंग करेंगे, घर्षण देंगे दोनों हथेलियों को। प्राप्त ऊर्जा को चेहरे को प्रदान करते हुए मुस्कुराते हुए आंखों को खोलेंगे। क्योंकि आज संडे है और सबका आराम करने का शायद मन होगा, टाइम ऐसा है या क्या, तो आइए थोड़ी बॉडी को वार्म अप एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ा एक्टिव बना लेते हैं हम सब। पद्मासन को खोल देंगे, सादी पलाथी को भी खोल देंगे।
थोड़ा सा पाँव को मूवमेंट दे देंगे। सबसे पहले पाँव की उंगलियों को फिंगर क्लंचिंग, पाँव की उंगलियों को मूवमेंट देंगे। एंकल जॉइंट, एंकल को आगे पीछे मूवमेंट देंगे। सर्कल में रोटेशन, रिवर्स, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ। हाथों को इंटरलॉक करके थोड़ा पाँव को, घुटने को मोड़ते हुए अंदर की तरफ, थोड़ा बॉडी को मूवमेंट दे देना है। माइक्रो एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म क्रियाएं बोलते हैं इसको, ताकि हमारी बॉडी जो है अगर जो थोड़ी सुस्ताई हुई है तो उसको एक्टिवनेस आ जाए, उसमें आसन के लिए तैयार हो जाए। अभी धीरे से बिना हाथ के सपोर्ट के, दोनों हाथों का सपोर्ट लिए बगैर खड़े हो जाएंगे एंड माइक्रो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। खड़े रह के सबसे पहले दोनों हाथ रहेंगे यहाँ पे कमर पे। नेक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ लेफ्ट और राइट में मूवमेंट देना है। अप एंड डाउन, ब्रीद इन, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए चिन को लॉक करेंगे। बैंड करनी है, लेफ्ट बैंड एंड राइट बैंड। आसनास में जाने से पहले माइक्रो एक्सरसाइजेस यानी कि सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं। सूक्ष्म क्रियाएं करने से हमारे टिश्यूज जो है वो टायर नहीं होते हैं आसन में जाने के बाद। नेक्स्ट कमर की एक्सरसाइज करनी है। दोनों पांव को थोड़ा हल्के से खोल देने हैं, दोनों हाथ खुले हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कमर को पूरा अच्छे से मूव करना है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों पांव के बीच में शोल्डर लेवल जितना ही डिस्टेंस रहेगा। अभी हाथों को भी लॉक करना है। जब भी हम सांस भरते हुए पीछे जाएंगे तो एक हाथ हमारा जाएगा शोल्डर पे, दूसरा हाथ जाएगा कमर पे, और कमर को पूरा ट्विस्ट करना है। बट पांव जो है, नीज हमारी जो है वो स्ट्रेट रहेंगी, नीज को मूव नहीं करना है, नीज सामने की तरफ रहेंगी। तो सांस भरते हुए शोल्डर पे और कमर पे लॉक करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। ब्रीद आउट, सेंटर में दोनों हाथों को खोल देना है। ब्रीद इन, वन मोर टाइम, दोनों हाथ को लॉक करना है, सेंटर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन मोर टाइम। कमर को जितना हो सकता है उतना पीछे की तरफ ट्विस्ट करें, लोअर बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम नीज की एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा नीज को मूवमेंट दे देना है। तो किस तरह से, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है, थोड़ा सा टोस पे खड़ा हो जाएंगे और ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप। जिनको नीज में परेशानी है, दर्द है, वो लोग नीचे ज्यादा नहीं झुकेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही झुकना है। ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप एंड रिलैक्स। दोनों पांव को, लेफ्ट और राइट दोनों पांव को एक साथ खोल देना है, दोनों हाथों को भी एक साथ खोल देना है। ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड डाउन जाएंगे। ब्रीद इन, सांस भरते हुए ऊपर, ब्रीद आउट, डाउन, फुल बॉडी को मूवमेंट दे देना है। ब्रीद इन अप, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। ब्रीद आउट और ब्रीद इन करते जाएंगे। जब भी हम नीचे जाते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी को मूव करना है, नेक को इस तरह से मूव नहीं करना है। नेक और हाथ दोनों सीधे रहेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम इसी में ऑल्टरनेट टो टच करेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए, बैक को सीधा स्ट्रेट रखते हुए, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट टो को टच करवाना है। अप आना है, अगेन राइट हैंड को लेफ्ट टो पे टच करवाना है, अगेन अप। ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन अप। अभी इसी एक्सरसाइज को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों पाँव को एक साथ वापस ले आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे पाद हस्तासन घर्षण, जिसके लिए दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। सांस छोड़ते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए अंगूठे पकड़ लेना है। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे। 1, अगर आपको कमर में दर्द है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। अगर आपको पेट में कोई स्टमक की इंजरी है या रिसेंटली आपने कोई सर्जरी करवाई है पेट की, हर्निया का प्रॉब्लम है, तो भी आप इस चीज को नहीं करेंगे। एंड रिलैक्स। दोनों पाँव को वापस से खोल देंगे हम लोग। दोनों हाथ आएंगे सामने की तरफ। दोनों पाँव को जितना आप अच्छे से खोल सकेंगे इस एक्सरसाइज के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चाहे तो आप दोनों हाथ कमर पे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप सामने की तरफ रख सकते हैं। ब्रीथ आउट, लेफ्ट साइड डाउन जाएंगे, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप। सेम एक्सरसाइज को रिपीटेशंस में करते जाएंगे। अगर आपको नीज में दर्द है तो आप नीचे ज्यादा नहीं झुक सकते हैं, तो आप हल्का सा मूवमेंट देंगे इस तरह से। अगर जो आपको नीज पेन है तो, अगर आपको नी पेन नहीं है तो आप जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो थोड़ा और फुल डाउन जाएंगे, पूरा बैठ जाएंगे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, दूसरी तरफ, ब्रीथ इन अप। और अगर जो आप नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट, तो हाथों को इस तरह से नीचे रख देंगे। हाथों के सपोर्ट से ब्रीथ आउट करते हुए डाउन जाएंगे, वापस सपोर्ट से ही ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट करते हुए डाउन। सांसों के साथ कनेक्टेड होकर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सांसों के साथ कनेक्टेड होकर हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी या आसन करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे पूरे सेल्स को अच्छे से मिलता है और टिश्यूज को भी मिलता है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में इंजरी नहीं होती है। नेक्स्ट हम स्ट्रेचिंग करेंगे। लेफ्ट साइड इस तरह से बॉडी को मूव कर देना है। घुटने को बेंड करते हुए हाथ को कमर पे रख सकते हैं, या तो इंटरलॉक करके घुटने पे एंड डाउन जाना है। ये पोजीशन लेने के बाद इसमें आप जितने अपने बटक्स को नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं उतना अच्छा है। अपर बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई नहीं रहेगी, उसको स्ट्रेट करना है। ब्रीथ इन अप, सेम जाएंगे राइट साइड, चाहे तो कमर पे हाथ, चाहे तो घुटनों पे हाथ। ब्रीथ आउट डाउन। अगर आपकी बॉडी इस तरह से आगे की तरफ है, अपर बॉडी को पीछे करो, बटक्स आपके हवा में है, उसको थोड़ा सा डाउन करो। घुटना जो है वो जमीन पे लगेगा नहीं, हवा में रहेगा। आगे वाला घुटना 90 डिग्री होगा। ब्रीथ इन अप, वन मोर टाइम, ब्रीथ आउट डाउन एंड 5 ब्रेथ होल्ड करना है इसी में। लोअर बॉडी के लिए पूरा अच्छा है, स्ट्रेंथनिंग होती है थाई मसल्स की, इससे स्ट्रेचिंग आता है। तो पूरे काफ मसल्स, थाई मसल्स, नीज के एरिया में जो ब्लड क्लॉटेजेस हो जाते हैं तो वो नहीं होते हैं। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे पीटी एक्सरसाइज। तो कैसे करना है? 1 जंप करना है, दोनों हाथ हवा में। 2 जंप करते हुए ताल। 1 हाथ और पांव एक साथ खुलेंगे। 2 हाथ और पांव दोनों बंद। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज, थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करना है और शोल्डर को भी ट्विस्ट करना है। तो दोनों हाथों को लेना है राइट साइड, तो कमर हमारी जाएगी लेफ्ट साइड। किस तरह से करेंगे? जंप जंप
जंप, अपोजिट डायरेक्शन में जंप, 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 1 इस तरह से, 2 पूरी कमर को ट्विस्ट करना है, रॉक एंड रोल जैसे करते हैं उस तरह से, एंड रिलैक्स। अगर आप थक गए हैं, दोनों घुटनों को इस तरह से बैंड करके उस पे हाथों को रख के लंबी और गहरी सांस भरेंगे और मुंह से खाली करेंगे। एंड रिलैक्स। अभी हमारी जो बॉडी है आसनास में जाने के लिए अच्छे से रेडी हो गई है। हमारी बॉडी का हर एक टिश्यू, हर एक मसल्स अच्छे से रेडी हो गया है कि हम उसमें आसनास में होल्ड कर पाए। तो आइए सबसे पहले खड़े होकर आसना करेंगे। सबसे पहले करना है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सीधे स्ट्रेट खड़े रहना है, वन साइडेड नहीं खड़े रहना है, दोनों पांव के बीच में गैप भी नहीं रहेगी, दोनों पांव एक साथ, दोनों पांव की फीट पे इक्वली बैलेंस, न बॉडी का बैलेंस आगे की तरफ और न ही बॉडी का बैलेंस पीछे हील्स की तरफ और न ही साइड में। फोकस करेंगे सबसे पहले हमारे पांव के फीट के ऊपर, फुल फीट के ऊपर हमारा इक्वली बैलेंस्ड होगा। उस बैलेंस को बरकरार रखते हुए ब्रीथ इन, सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाना है और नमस्कार मुद्रा बनानी है। जब भी हम नमस्कार मुद्रा बनाते हैं तो हमारी एल्बो जो साइड से थोड़ी सी बैंड है उसको स्ट्रेट कर देंगे। धीरे धीरे कान के पीछे की तरफ थोड़ा सा हाथों को लेके जाएंगे और थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। नेवल को सेंटर रखते हुए अपर बॉडी को ऊपर की तरफ और लोअर बॉडी को नीचे की तरफ पूरा खींचना है। आंखें बंद कर देनी है। कुछ सेकंड्स इसी आसन में हमें होल्ड करना है। ताड़ यानी कि पाम ट्री, बैलेंसिंग आसना है। कंसंट्रेशन बढ़ाता है इस आसन से, मेमोरी भी इससे शार्प होती है, कूलनेस और कामनेस हमारे शरीर में आती है। ब्रीथ आउट, धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलते हुए साइड से फैलाते हुए दोनों हाथ नीचे रखेंगे। ताड़ासन में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो हम ताड़ासन की एक एक करके सीक्वेंस करते जाएंगे। खड़े रह के करने वाले आसन है ये, और इन सभी का यही है कि वो बैलेंसिंग पोस्चर है। इसके बाद में हमारी मेमोरी को शार्प करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे ब्रेन को कूल डाउन करता है। स्ट्रेस जिनको होता है बहुत ज्यादा तो उनका भी स्ट्रेस को रिलीज करता है। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन। अभी हम ताड़ासन की दूसरी सीरीज करेंगे। नमस्कार मुद्रा बना के हाथों को इंटरलॉक करना है, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। जब भी हम हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं एल्बो स्ट्रेट होगी और यहाँ से पूरा साइड से हमारी कमर को ऊपर की तरफ खींचना है पूरा। नेवल को लॉक करते हुए पीछे की तरफ खींचते हुए नेवल को पूरा स्क्वीज करना है। अभी धीरे से सांस भरते हुए हमारे टोस पे आ जाना है, हील्स हवा में रहेगी और इसी में होल्ड करना है 5 ब्रेथ। हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसना इतना ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी उनको हेल्प करता है। ब्रीथ आउट, डाउन, हाथों को इंटरलॉक छोड़ते हुए नीचे। अभी इसी में हम नेक्स्ट करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में थोड़ा सा दोनों पांव के बीच में हिप जॉइंट जितना डिस्टेंस रहेगा। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, इंटरलॉक कर देंगे ऊपर की तरफ। आराम से पूरा आसनास की जितनी भी सीक्वेंस होती है उसमें आराम से ब्रेथ के साथ और खुद के साथ कनेक्टेड होके हर आसन करते हैं। ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड डाउन जाना है। जब भी हम डाउन जाते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो पूरा बाहर नहीं निकालना है। लोअर बॉडी पार्ट को हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए सिर्फ अपर बॉडी पार्ट को कमर की यहाँ से पूरा डाउन ले जाना है, इस तरह से। पेट को स्क्वीज कर देना है। दूसरी बात यह है कि लोअर बॉडी को भी पूरा स्क्वीज और पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रखनी है। एल्बो स्ट्रेट, ब्रीथ इन अप, सेम राइट साइड, ब्रीथ आउट डाउन,
पूरा बॉडी को, कमर को बाहर नहीं निकालना है, लोअर बॉडी स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ अपर बॉडी को मूव करना है एंड डाउन जाना है। गर्दन को भी ऐसे झुका नहीं देना है, गर्दन भी स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ कमर को झुकाना है, बाकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। ये भी बैलेंसिंग आसना है। चेस्ट ओपन अप है, यानी कि लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी भी इससे बढ़ती है। ब्रीथ आउट, डाउन, दोनों पांव एक साथ नीचे। कमर दर्द के लिए भी अच्छा है, जिनको भी कमर का दर्द है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग वाले अगर आप आसनास करते हैं तो कमर का दर्द जो है उसमें आपको फायदा मिलता है। पूरा दिन जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, तो ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों को काफी देर तक कंप्यूटर के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर आप उठ के जब भी थक गए हैं तो ये तिर्यक ताड़ासन भी इस तरह से कर देंगे, तो आपको कमर का दर्द जो है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। थोड़ा सा ये वाली एक्सरसाइज कर ली, खड़े होके माइक्रो एक्सरसाइज, जो सूक्ष्म क्रियाएं हमने सीखी, तो कमर को मूवमेंट मिल जाता है। जैसे ही कमर को मूवमेंट मिलता है, कमर एक्टिव बनती है, कमर के साथ हमारा नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही हमारी कमर को मूवमेंट मिलती है, हमारा नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, तो हमें वो इमीडिएटली कूल डाउन मिलता है, बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आसन करेंगे वृक्षासन, जो भी खड़े रह के करने वाला है। लेफ्ट लेग को इस तरह से पांव से मोड़ देना है, उसकी फीट को रखना है थाई मसल्स के मूल में, राइट थाई मसल्स के मूल में। इसमें ध्यान ये देना है कि आपका पांव जो है क्रॉस में ना जाए, पूरा पांव जो है उसको स्ट्रेट करना है। पेल्विस आपकी जो है वो स्ट्रेट रहेगी, क्रॉस में नहीं रहेगी। ब्रीद इन, सांस भरते हुए अगेन दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, एंड इसी में होल्ड करना है। 5 ब्रेथ तक होल्ड करेंगे, नजर सामने की ओर। अगर जो आप आंखें बंद कर सकते हैं तो आंखों को बंद कर देंगे। धीरे से वापस आएंगे, ब्रीथ आउट एंड पांव को नीचे रख देंगे। सेम राइट साइड से भी करना है, बट अभी हम ध्रुवासन नेक्स्ट आसन करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आसनास हम अच्छे से सीख पाए, ताकि आप घर पे भी जब इस चीजों को ट्राई करें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ये सारे जो भी अभी आसनास हैं, पहले अभी ध्रुवासन करेंगे, फिर बाद में सुनते जाएंगे। इस तरह से लेफ्ट पांव को उठा देना है और ऐसे रख देना है। जो हमारी फीट है उसको क्रॉस करके हमारे थाई मसल्स के मूल में रख देना है। यहाँ पे सांस भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में एंड होल्ड। ये सारे स्टैंडिंग आसनास जो भी हैं वो हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। बैलेंसिंग बनाने के टाइम पे हमारा फुल फोकस होता है हमारा बैलेंस बनाने में, कि अगर जो हम जितना अच्छे से बैलेंस बना सकते हैं तो उतना ही हम आसनों में टिक सकते हैं अच्छे से। तो इसके लिए हमारा कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा शार्प हो जाता है, बढ़ जाता है। धीरे से वापस आएंगे, ब्रीथ आउट करते हुए पहले हाथों को रखेंगे, उसके बाद पांव को भी छोड़ देंगे। ये हो गए हमारे स्टैंडिंग आसनास, जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में, मेमोरी शार्प करने में, हमें इमीडिएटली कूल डाउन करने में काम आते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट करेंगे हम त्रिकोणासन। ये जो त्रिकोणासन है वो हमारा लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। कहते हैं कि जितना आपका लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा तो अपर बॉडी का मूवमेंट इतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि हमारा जो पूरे दिन भर का काम होता है वो लोअर बॉडी का ही होता है। चलना, भागना, कामकाज, यहाँ वहां भाग दौड़ करना, पूरा दिन जो है लोअर बॉडी एक्टिव रहता है। तो जितना लोअर बॉडी को एक्टिव रखते हैं उतना ही हम भी एक्टिव रहते हैं पूरा दिन। तो लोअर बॉडी की ओर ध्यान ले जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोणासना। तो त्रिकोणासना में पाँव को, दोनों पाँव को खोल देना है, जितना आप खोल सकते हैं मैक्सिमम उतना खोल देंगे। उसके बाद में दोनों हाथों को खोल देना है। आपके हाथों पे ध्यान लेके जाओ, ऐसा नहीं होगा, पूरा शोल्डर लेवल पे अच्छे से खोलना है, नीचे की तरफ नहीं, स्ट्रेट करते हुए बैक को, चेस्ट पूरी बाहर की तरफ खुलती हुई। धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए सबसे पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, हाथ हमारा सीधा जाएगा और नेक को भी मूवमेंट नहीं देना है, ऐसे नेक नहीं जाएगी, सिर्फ कमर को यहां से मूव करते हुए बॉडी को ब्रीथ आउट एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड डाउन एंड होल्ड। होल्डिंग के टाइम पे अगर जो आपकी बॉडी इस तरह से आगे झुकी हुई है, धीरे धीरे उसको खोलेंगे, चेस्ट को पूरा सामने की तरफ खोलेंगे,
हाथों को ऊपर की तरफ और अपने हाथों को देखना है, गर्दन को ऊपर की तरफ। रिवर्स आएंगे, ब्रीद इन अप, सेम दूसरी साइड, ब्रीद आउट डाउन। सेम अगर आपकी बॉडी आगे की तरफ चली गई है तो उसको पूरा खोलेंगे, नजर ऊपर की तरफ एंड होल्ड। घुटने इसमें बैंड नहीं रहेंगे, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, जितना हो सकता है होल्ड, ब्रीद इन अप एंड रिलैक्स। इसमें हमारा पूरा लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों ही इन्वॉल्व हैं। त्रिकोणासन की और वीरभद्रासन वॉरियर पोजेस की जो अभी हम सीरीज करने वाले हैं, वो जितनी भी सीरीज हैं वो सारी लोअर बॉडी के साथ साथ हमारी चेस्ट ओपन अप आसनास हैं। तो इसमें जितनी हमारी चेस्ट खुलती है उतना हमारा लंग्स जो है वो भी खुलता है, तो लंग्स और हार्ट की भी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे भी बहुत ही अच्छे से होता है। तो अभी हम विपरीत त्रिकोणासन करेंगे, परिवृत्त त्रिकोणासन। दोनों हाथों को सेम इसी तरह से प्लेस करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए सबसे पहले बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ, हाथ भी स्ट्रेट रहेंगे, एंड देन ब्रीद आउट, ऑपोजिट लेफ्ट हैंड को राइट लेग की तरफ प्लेस कर देना है, पूरा कमर को ट्विस्ट करना है और नजर जाएगी आसमान की ओर। 5 ब्रेथ होल्ड, ब्रीद इन अप, सेम जाएंगे राइट साइड डाउन कर जाएंगे, 5 ब्रेथ होल्ड, ब्रीद इन अप एंड रिलैक्स। इससे पहले जो हमने वृक्षासन और ताड़ासन की जो सीरीज की थी, तो उसमें अगर जो आपने खाना 3 घंटे पहले खाया हो या 2 घंटे में खाया हो तो चलता है, बट ये जो हम त्रिकोणासन की सीरीज कर रहे हैं या जो भी हम नेक्स्ट आसनास करेंगे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि आपका पेट जो है वो खाना उसने 3 घंटे यानी 3-3.5 घंटे खाना पहले खा चुका हो, उसके बाद में ही ये त्रिकोणासन की सीरीज करनी है, ताकि आप अच्छे से उसको कर पाए। अगर जो भरा हुआ पेट होगा, दैट मीन्स कि आपने अभी लंच 2-2:30 बजे किया हो तो ठीक है, बट अगर आप 4 बजे लंच करके फिर डायरेक्ट हमसे जुड़ते हैं तो वो जो भी खाना अभी डाइजेशन में एक्टिव है तो वो खाना ऊपर की तरफ वापस बैक मारता है, तो आपको एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा कि आपका जो पेट है वो भूखा होना चाहिए, यानी कि आपने लंच जो है वो 3 घंटे पहले ले लिया होना चाहिए। अभी हम सूर्य नमस्कार करते हैं। एक सूर्य नमस्कार करेंगे, खड़े रह के आसनास हमारा हो गया है। एक सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। 1, दोनों हाथों को ऊपर से सेंटर में, ब्रीद आउट करते हुए हेड डाउन करेंगे। 2, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा को छोड़ना नहीं है, नीचे से पूरा ले जाना है पीछे की ओर। इससे भी लोअर बॉडी जो है स्ट्रेट रहेगा, बाहर नहीं निकालना है, लोअर बॉडी स्ट्रेट, सिर्फ अपर बॉडी को पीछे की ओर ले जाना है, जितना ले जा सकते हैं। 3, नमस्कार मुद्रा को छोड़ना नहीं है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए अंगूठे को पकड़ लेना है। 4, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। सूर्य नमस्कार में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, हर कोई अलग अलग करता है। आज हम इस तरह से घुटने को 90 डिग्री रखते हुए करेंगे। 5, दोनों पांव को पीछे ले जाना है। अगर जो आपकी हील्स हवा में है तो हील्स को पूरा नीचे ले जाएंगे। आपकी बॉडी जो है उसको थोड़ा सा अपर बॉडी को अंदर की ओर प्रेस करेंगे, हिप्स को पूरा आसमान की ओर खींचेंगे और इसी में होल्ड। नीज पूरे स्ट्रेट रहेंगे। 6, घुटनों को जमीन पे रखेंगे, कैट कैमल में आके अपर बॉडी को जो आगे की तरफ ले जाएंगे एंड फॉरहेड लगाएंगे, हिप्स हवा में रहेगा आपका। 7, पांव को नीचे फ्लैट कर देंगे एंड कोबरा पोज में आ जाएंगे, सिर्फ कमर तक का ही शरीर हवा में उठाना है। 8, अगेन कैट कैमल में आ जाएंगे, घुटनों को स्ट्रेट कर देंगे। 9, लेफ्ट लेग को जो हम पीछे लेके गए थे उसको आगे दोनों पांव के बीच में ले आएंगे।
10, पीछे वाले पांव को भी आगे एक साथ। 11, नमस्कार मुद्रा बनानी है। फिर से नमस्कार मुद्रा को बैक को स्ट्रेट रखते हुए, लोअर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। एंड नमस्कार मुद्रा जो है सेंटर में हार्ट चक्र की ओर लेके आएंगे। इस तरह से पूरा सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट हुआ है। इस तरह से 12 सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं एक साथ। सूर्य नमस्कार की सीरीज के बाद अभी हम करते हैं बैठ के करने वाले आसन। तो बिना हाथ के सपोर्ट के क्रॉस लेग करते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे। एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, बिना सपोर्ट के वापस उठ जाएंगे। दोनों हाथ साइड पे बैठ जाएंगे, पंछी की तरह उड़ेंगे, उठेंगे, बैठ जाएंगे। लास्ट टाइम, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। आंखें बंद, थोड़ा सा ब्रेथ को नॉर्मल कर देंगे। श्वास प्रश्वास पे ध्यान ले जाते हुए ब्रीथ इन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे फोकस करते हुए, खुद के साथ कनेक्टेड होते हुए एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। स्टैंडिंग आसनास के बाद अपने शरीर को सिटिंग आसनास के लिए तैयार करना है। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। बैठ के करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले जानुशीरासन करेंगे। उसके लिए दोनों पांव को सबसे पहले खोल देना है। जानुशीरासन या पश्चिमोत्तानासन बैठ के करने वाली सीरीज जो होती है, उसके लिए सबसे पहले जो होता है दंडासन में बैठना जरूरी होता है। तो दंडासन में किस तरह से बैठा जाता है, अपने पोस्चर को चेक करें। ऐसे बैठे हैं हम, किस तरह से बैठे हैं, हमारे पांव को चेक करें, ऐसे हैं। अगर जो हमारे पांव ऐसे हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करो अच्छे से। पांव के अंगूठे अगर आगे की तरफ ढीले हैं उसको टाइट करो, अपनी तरफ खींचो। बैक हमारी ऐसे है, बैक को स्ट्रेट करो इस तरह से। पूरे हिप्स को एंगेज करो, नीज को एंगेज करना है, पीठ को एंगेज करना है। इसके बाद में हमारी अपर बॉडी को भी एंगेज करना है। चेस्ट को पूरा अच्छे से खोलना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। दोनों हाथ चाहे तो हिप्स के पास में या तो घुटनों के ऊपर। जब भी हम हिप्स के पास में रखते हैं तो हमारा हाथ जो है उस पे वजन नहीं देना है, नॉर्मल प्लेस करना है। इसी में होल्ड करेंगे। ये होता है दंडासन। बैठ के करने वाले आसनों में दंडासन जो है वो हमारा बेसिक है। ये आसन सबसे पहले आना चाहिए। जितना हो सकता है अंगूठों को अपनी तरफ प्लेस करो। इसको काफ मसल्स को और हिप्स और इसको थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। सबसे पहले अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फ्रिक्शन एक्सरसाइज करनी है। सांस छोड़ते हुए नीचे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5 से 6 बार थोड़ा फास्ट में मूवमेंट करेंगे। फोर्सफुली सांसों को भरना है और खाली करना है। एंड रिलैक्स। अभी हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पूर्ण पश्चिमोत्तानासन नहीं करेंगे हम, सिर्फ अर्ध पश्चिमोत्तानासन। तो किस तरह से करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे को पकड़ लेना है। बैक अगर हमारी इस तरह से है तो धीरे धीरे उसको एडजस्ट करते हुए पूरी बैक को स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। दोनों पांव के अंगूठे अपनी तरफ खींचे हुए, जो हमारे नीज है वो भी जमीन पे लगे हुए, ऐसे उठे हुए नहीं होने चाहिए, जमीन पे लगे हुए। नजर सामने और इसी में होल्ड। 5 ब्रेथ होल्ड, ब्रीथ इन एंड आउट। पश्चिमोत्तानासन, जानुशीरासन जो भी हम करने वाले हैं, वक्रासन, ये सारे आसन जो है वो अगर जो आपको कमर में इंजरी है, पेट में, अगर आपने एक बार और करते जाएंगे और सुनते जाएंगे। ब्रीथ आउट एंड होल्ड। कमर में अगर आपको दर्द है तो ये आसन इस तरह से आप कमर को स्ट्रेट रखते हुए कर सकते हैं, बट इसमें कमर को पूरा झुकाना नहीं है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए कर सकते हैं। लोअर बॉडी में ये पूरा
आसन जो है कमर दर्द वालों के लिए अच्छा है। नीज में भी जिनको पेन है उनके लिए भी ये आसन काफी अच्छा है। ब्रीथ इन अप एंड डाउन। अभी उसके बाद में करेंगे जानु शीरासन। लेफ्ट पाम को इसी में मोड़ देना है, घुटने में से मोड़ते हुए। ये हमारा पोजीशन रहेगा, पाँव स्ट्रेट रहेगा। लेफ्ट पाम को घुटने में से मोड़ते हुए रख देना है। इसी में भी सबसे पहले फ्रिक्शन एक्सरसाइज, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन 5-6 ब्रेथ करेंगे। संस्कृत में जानु का मतलब होता है घुटना। जानु मतलब घुटना, शीर मतलब कि मस्तक। तो जानु यानी कि घुटने पे अपने मस्तक को लगाना, वो होता है जानु शीरासन। कमर दर्द वाले ये आसन नहीं करेंगे। जिनको हरनिया की तकलीफ है वो भी ये आसन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पेट में पूरा खिंचाव आता है। इसके लिए हरनिया वाले ये आसन को नहीं करेंगे। बाकी जो भी हेल्दी हैं वो करेंगे। फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल पेन है, तो भी आप नहीं करोगे ये आसन को। ब्रीथ इन, अभी हम पूर्ण जानु शीरासन में जाएंगे। ब्रीथ आउट, बैक को स्ट्रेट रखते हुए हाथ और आपकी कमर एक साथ नीचे जाएगी। अंगूठे को पकड़ लेना है। जो लोग पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं वो इस तरह से रुकेंगे। ये पूरा रोल नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट करना है और इसी में रोकना है। नजर सामने की तरफ जाएगी, क्योंकि जानु शीरासन का मतलब ही है घुटने पे अपने मस्तिष्क को लगाना। तो जो लोग जा सकते हैं वो पूरा घुटने पे अपने सिर को लगा देंगे और उसी में 5 ब्रेथ होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन अप, दोनों हाथ ऊपर एंड डाउन। रिलैक्स, दोनों पांव सीधे ही रहेंगे। दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे वापस से। इसके बाद में हम वज्रासन में जाएंगे और करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में इस तरह से सबसे पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड कर देना है, फिर राइट लेग को फोल्ड कर देना है। मंडूकासन जो आसन है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी अच्छा है। मंडूकासन आसन करने से हमारी पैनक्रियाज जो है वो अच्छे से वर्क करती है। ये वज्रासन में बैठने के बाद अगर जो आपकी बॉडी इस तरह से आगे की तरफ हो तो बॉडी को, अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ मूव करो। आगे की तरफ नहीं बैठना है, वो हमारे घुटनों पे इंजरी करता है, टिश्यूज टेयर कर देता है वहां पे, और नीज में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर है कि आप पीछे की तरफ वजन को रखते हुए बैठे। और अगर जो जिनको पहले से ही नीज में पेन है वो वज्रासन लेके नहीं बैठेगा, वो सादी पलाती में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों के इस तरह से अंगूठे को लॉक करते हुए 4 उंगलियां उसके ऊपर लॉक कर देंगे। इस तरह से आमने सामने प्लेस करना है मुट्ठियों को। हाथों की मुट्ठी आमने सामने प्लेस करते हुए यहाँ हमारे नेवल पे रखनी है और पेट को अंदर की ओर पूरा दबाना है। जितना फोर्सफुली अंदर दबा सकते हैं उतना पूरा दबाना है। बट अगर जो आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर जो आपको हरनिया का तकलीफ है, और अगर जो आपने रिसेंटली कोई स्टमक की सर्जरी करवाई है या पथरी का प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज नहीं करेंगे, ये आसन भी नहीं करेंगे आप। बाकी डायबिटिक पेशेंट, ये आसन करने से डायबिटिक पेशेंट को फायदा मिलता है। हार्ट डिजीज है, जिनको कार्डियक अटैक आ चुका है, वो लोग भी ये आसन को नहीं करेंगे। अच्छे से दोनों को प्लेस करेंगे, मुट्ठियों को अंदर की तरफ दबाते हुए। ब्रीथ आउट करना है। शोल्डर आगे की तरफ मूव नहीं रहेगा, शोल्डर को पीछे की तरफ पूरा मूव करते हुए शोल्डर पीछे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाना है। बट आपको देखना सामने ही है, पूरा जो मस्तिष्क है वो नीचे नहीं लगाना है, सामने की तरफ देखना है। 5 ब्रेथ होल्ड, ब्रीथ इन अप एंड रिलैक्स। इसी में हम मंडूकासन पार्ट 2 करेंगे। तो लेफ्ट पाम को इस तरह से रखना है नेवल पे, राइट पाम को उसके ऊपर रख देना है और दबाना है। जब भी हम दबाते हैं तो हाथों की भी पोजीशन चेक कर लेंगे। शोल्डर को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे, जैसे कि आपकी चेस्ट पूरी ओपन अप हो जाती है। डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इतना ही अच्छे से वर्क करता है। बैक को स्ट्रेट रखते हुए ब्रीथ आउट, डाउन, नजर को सामने रखते हुए इसी में होल्ड। 5 ब्रेथ होल्ड, ब्रीथ इन अप एंड रिलैक्स।
जो भी आसनास है हम करते हैं बैठ के करने वाले, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम पे बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। बट ये वर्क कब करते हैं? जब भी हम इस पे ब्रेथ पे फोकस के साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी हम जिमिंग वाली एक्सरसाइज या अपने कार्डियो करते हैं यानी भागदौड़ वाली एक्सरसाइज, एरोबिक्स एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें और आसनास में क्या डिफरेंशिएट है? तो मेन है ब्रेथ। हम जब भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जिम वर्कआउट करते हैं या दूसरा वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं, तो हमारा ब्रेथ जो है उस पर हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारी ब्रेथ का पैटर्न उसमें फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ जाती है, कभी फिर स्लो डाउन करते हैं, फिर बढ़ जाती है, फिर स्लो डाउन करते हैं। तो इसमें हमें आसनों में हम अपने ब्रेथ के साथ कनेक्टेड होके जब भी हम सांस इसमें डीपली इनहेल करते हैं और जब भी सांसों को छोड़ते हुए डीपली एक्सहेल करते, कोई भी आसन को बांधते हैं या छोड़ते हैं, तो ही हमें वो इंटरनली इफेक्ट देता है, तो ही वो हमारे ऑर्गन्स पे जाके, मसल्स और टिश्यूज पे जाके वो वर्क करता है और हमारे इंटरनली वो फायदा करता है। तो कोई भी आसनास हम करते हैं तो उसमें ब्रेथ के साथ कनेक्टेड होके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो भी रेशियो है, वो जो भी रिदम है, उस पर फोकस करते हुए हर आसन को करेंगे। अभी नेक्स्ट हम करेंगे शशकासन यानी कि रैबिट पोस्चर भी जिसको बोलते हैं, दोनों हाथ घुटनों पे है। इसमें हर एक पोस्चर में आपकी बैक, आपका घुटना, आपके दोनों हाथ जिस तरह से प्लेस किए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक आसनास में हर एक बॉडी का जो पोस्चर होता है और मूवमेंट होता है वो परफेक्टली जब भी करते हैं तभी वो आसन हमें इंटरनली इफेक्ट देते हैं पॉजिटिव। ब्रीद इन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जब भी मैं हाथ ऊपर करती हूँ तो हाथ मेरे ढीले नहीं है, एकदम कड़क। ब्रीद आउट, जब भी ब्रीद आउट करती हूँ तो मेरी कमर और मेरे दोनों हाथ एक साथ नीचे आ रहे हैं, सामने की तरफ प्लेस करना है। धीरे धीरे हाथों को ब्रीद आउट करते हुए अपनी तरफ खींचना है, दोनों कान के पास में रखना है। इसी में 5 ब्रेथ होल्ड। रिवर्स आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। ब्रीद इन, अगेन सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। आसनास में जिस तरह से जाना इम्पोर्टेंट है उसी तरह से वापस आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। काफी लोग बहुत अच्छे से आसनास में जाते हैं बट जब वापस आते हैं तो एकदम से आसन को छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। तो जो हम अभी वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन में से इस तरह से खड़े हो जाएंगे। दोनों पांव जो हमारे घुटने साथ में जुड़े हुए हैं उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर देंगे दोनों घुटनों के बीच में। दोनों पांव पीछे से, जिस तरह से हमारा नी जॉइंट और पीछे हमारा एंकल जॉइंट, वो दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए। जब भी आप ऊपर उठते हो तो आपका जो है नी जॉइंट बाहर की तरफ होता है और एंकल जॉइंट अंदर की तरफ होता है। तो अपने बॉडी पोस्चर को देख लेंगे कि दोनों एक जगह में एक लाइन में है या नहीं। आसन में जाएंगे, ब्रीद इन, सांस भरते हुए पहले लेफ्ट हैंड को इस तरह से प्लेस करना है लेफ्ट एंकल पे। उसके बाद में राइट हैंड को प्लेस करना है लेफ्ट एंकल पे, राइट एंकल पे प्लेस करना है। बॉडी को, अगर आपकी इस तरह से बॉडी बाहर है, उसको पूरा बाहर की तरफ धक्का देंगे और गर्दन को नीचे छोड़ देंगे। इसी में 5 ब्रेथ होल्ड। जब भी हम वापस आएंगे बॉडी को नीचे की तरफ रख देंगे एंड सर को सीधा करेंगे। इसका एक एडवांस ये भी है कि आप दोनों पांव को फ्लैट करके भी कर सकते हैं। सेम लेफ्ट, राइट एंड देन बॉडी को बाहर की तरफ प्लेस करते हुए गर्दन को नीचे की तरफ छोड़ देंगे। एंड रिलैक्स। थायराइड ग्लैंड इसमें पूरा एक्टिव रहता है क्योंकि हमारा पोस्चर जो है इस तरह से रहता है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम पूरा एक्टिव रहता है। कमर दर्द वाले भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। और मेनली इसमें थायराइड ग्लैंड, जिनको थायराइड की तकलीफ है
थायराइड वाले भी इस आसन को कर सकते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट हम सो के करने वाले कुछ आसन कर देंगे, उल्टे सो के करने वाले आसन। तो अभी उल्टे सो जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से प्लेस कर देना है। सबसे पहले हम उल्टे सो के सर्पासन और भुजंगासन जो हमने अभी सूर्य नमस्कार में किया था वही आसन करेंगे। तो सर्पासन के लिए दोनों हाथों को, सर्पासन और भुजंगासन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट को समझते हुए करेंगे। कमर दर्द वालों के लिए सर्पासन सही नहीं है, स्पेशली जिनकी लंबर डिस्क का प्रॉब्लम है वो लोग सर्पासन नहीं करेंगे, वो भुजंगासन कर सकते हैं कमर दर्द वाले। इससे सेम डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम एक्टिव होते हैं। भुजंगासन सबसे पहले करेंगे। भुजंगासन के लिए हमारे हाथ जो है वो हमारे कमर की साइड में रहेंगे, फॉरहेड लगाना है। दोनों शोल्डर्स जो अगर नीचे की तरफ प्लेस है उसको रोल करके पीछे ले जाएंगे, दोनों आईब्रोज को अंदर की तरफ रखेंगे। पीछे से अगर जो दोनों पांव आपके खुले हुए हैं उसको कोशिश करेंगे दोनों पांव को साथ में ज्वाइंट रखने की। ब्रीथ इन, सांस भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को उठाना है, कमर तक का ही शरीर उठेगा, आपका पूरा शरीर नहीं उठाना है। आपका पूरा वजन जो है आपके स्टमक पे आएगा। अगर जो आपने दोनों हाथों को बाहर भी निकाल दिया तो आपकी बॉडी नीचे झुक नहीं जाएगी, आप ऊपर ही रहेगी। पीछे से पांव खुले नहीं, उसका ध्यान देना है। सर्वाइकल पूरा रिलैक्स रहेगा, स्टमक को पूरा एक्टिव रखते हुए 5 ब्रेथ होल्ड। धीरे से वापस आएंगे, फॉरहेड रख देंगे, दोनों हाथों को अभी रिलैक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सर्पासन। तो सर्पासन के लिए हमारे दोनों हाथों को हमारे कान के लेवल में प्लेस करना है। इसमें हम थोड़ा सा दोनों पांव को पीछे शोल्डर लेवल जितना खोल सकते हैं। ब्रीथ इन, सांस भरते हुए आराम से, एकदम जर्क के साथ बॉडी को उठाना नहीं है, आराम से उठाना है और दोनों एल्बो को धीरे धीरे स्ट्रेट कर देना है। जब भी हम एल्बो को स्ट्रेट कर देते हैं काफियों का इस तरह से स्टैंड बन जाता है एल्बो का और शोल्डर का, तो शोल्डर का स्टैंड नहीं बनाना है। शोल्डर को हल्के से पीछे रोल करते हुए मूव करना है, एल्बो को स्ट्रेट करते जाना है और नजर सामने की तरफ ही रखेगी। चेस्ट को पूरा बाहर निकालना है, चेस्ट ओपन अप है आसन, ये सर्पासन। डिस्क का प्रॉब्लम है, लंबर में डिस्क का प्रॉब्लम है तो आप ये आसन नहीं कर सकते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग के आसनास में जिनको भी इंटरेस्टेड हो वो उन लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। धीरे धीरे अगर आप कर सकते हैं तो अपनी गर्दन को भी पीछे की ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए। धीरे धीरे ब्रीथ आउट। जब भी वापस आएंगे तभी आराम से बॉडी को नीचे रखना है एंड रिलैक्स। मकरासन, दोनों हाथों के ऊपर सर को रख देना है और थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, बैक को रिलैक्सेशन दे देना है। क्योंकि हमारी इसमें बैक इन्वॉल्व होती है, सर्पासन, भुजंगासन और अभी जो हम शलभासन करने वाले हैं वो तीनों में हमारी बैक इन्वॉल्व होती है, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमारी नर्व्स जुड़ी हुई रहती हैं, ब्रेन की नर्व्स जुड़ी हुई रहती हैं, तो हमारे ब्रेन को कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर शार्प करने के लिए ये सारे आसनास बहुत इफेक्टिव रहते हैं। और बैक पेन जिनको है, बैक पेन वालों को भी ये आसन काफी फायदे करते हैं। बट अगर जो आपको हर्निया का प्रॉब्लम है और अगर जो आपको स्टमक में कोई इंजरी है या तो फिर आपने रिसेंटली कोई सर्जरी कराई है या तो फिर आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो भी आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। स्टोन प्रॉब्लम है तो भी ये चीज नहीं कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को थाई मसल्स के नीचे प्लेस कर देना है, पीछे से दोनों पांव जो है जुड़े हुए रहेंगे और इसमें आपकी चिन लॉक रहेगी। शोल्डर्स जो आपके नीचे की तरफ है प्रेस किए हुए उसको धीरे से पीछे की ओर ले जाएंगे रोल करते हुए।
धीरे से इसमें अभी अपर बॉडी नहीं उठानी है, अपर बॉडी की चिन लगी हुई रहेगी, सिर्फ लोअर बॉडी को पीछे से उठाना है हवा में। ब्रीद इन, सांस भरते हुए लोअर बॉडी को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। कोशिश करेंगे दोनों पांव साथ में जुड़े हुए हों और इसी में होल्ड करेंगे। 5 ब्रेथ होल्ड। धीरे धीरे नीचे आएंगे। शोल्डर को, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देना है। नेक्स्ट इसी में हम पूर्ण शलभासन, अपर बॉडी और लोअर बॉडी को उठाएंगे एक साथ। चिन लॉक रहेगी, पीछे से दोनों पांव जुड़े हुए। ब्रीद इन, सांस भरते हुए शोल्डर जो आपके नीचे प्लेस है उसको सबसे पहले पीछे की ओर एक्टिव करो, रोल करना है। अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक साथ उठाएंगे और पूरा जो वेट है आपका स्टमक पे आएगा। इसी में होल्ड। 5 ब्रेथ। चेस्ट पूरी खुली हुई है, थायराइड ग्लैंड भी इसमें एक्टिव रहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और आपके मसल्स पूरे इन्वॉल्व है इसमें, लोअर बॉडी पार्ट के, अपर बॉडी पार्ट के, पूरी बॉडी आपकी इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीथ आउट डाउन एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को निकालेंगे, सीधे सो जाएंगे। सीधे सो के करने वाले आसन करेंगे अभी हम। चिन लॉक रहेगी। जब भी हम सोते हैं तो कोशिश करेंगे कि हमारी नेक जो है वो पूरी जमीन पे लगी हुई रहे। चिन लॉक हो, नेक जो है रिलैक्स पोजीशन में रहे, चिन हवा में नहीं रहे। चिन जैसे ही हवा में रहती है हमारी नेक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है। पूरा दिन हम काम करते हैं तो नेक वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट ही होती है। तो सीधे सो के करने वाले आसन में हमें इस तरह से नेक को नीचे जमीन पे लगा देना है और गर्दन को हमारी रिलैक्स कर देना है, ताकि हमारी गर्दन रिलैक्स हो तो सर्वाइकल में दिक्कत ना हो। चिन लॉक रहेगी। अभी हम सबसे पहले करने वाले हैं अर्ध हलासन। दोनों हाथ साइड पे प्लेस रहेंगे। ब्रीद इन, सांस भरते हुए दोनों पांव को एक साथ उठाना है 90 डिग्री। घुटनों को स्ट्रेट रखते हुए 90 डिग्री अप। पांव के अंगूठों को अपनी तरफ खींच लेना है। दोनों ही नीज जो है वो स्ट्रेट रहेगी, ऐसे पांव ढीले नहीं रहेंगे, स्ट्रेट। चिन लॉक, कोर मसल्स अंदर की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथ साइड पे। 5 ब्रेथ होल्ड। ब्रीथ आउट करते हुए दोनों पांव को घुटने से स्ट्रेट रखते हुए आराम से नीचे प्लेस करना है। सो के जो भी हम एक्सरसाइज आसनास अभी कर रहे हैं तो वो हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करता है। कोर के साथ साथ हमारी स्पाइनल कॉर्ड को और हमारे थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिव करते हुए हमें स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है। नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंधासन। सांस भरते हुए दोनों पांव को घुटने में से फोल्ड करते हुए पांव की उंगलियों के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है। दोनों पांव बहुत ज्यादा खुले हुए भी ना हो, बहुत ज्यादा बंद भी ना हो। शोल्डर लेवल जितना दोनों पांव के घुटनों के बीच में गैप रहेगा। शोल्डर जो है उसको अच्छे से एक्टिव करते हुए, चेस्ट को खोलते हुए धीरे धीरे पहले कमर, हिप्स को उठाएंगे, फिर कमर को उठाएंगे और फिर चेस्ट को उठाएंगे। पूरे शोल्डर को एक्टिव करते हुए जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाना है शरीर। थायराइड वालों के लिए अच्छा है, लंबी गहरी सांसें। 5 ब्रेथ इसमें होल्ड करेंगे। कमर दर्द वालों के लिए आसन अच्छा है, पूरे हमारे हिप थाइस इसमें एक्टिव रहते हैं तो लोअर बॉडी के लिए भी अच्छा है। धीरे धीरे एकदम जल्द के साथ नहीं, आराम से नीचे प्लेस करेंगे शरीर को। ये है ब्रिज पोस्चर। इन सारे आसनास करने के टाइम पे हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि खाना जो है वो हम 3 घंटे पहले हमारा लंच लिया हुआ हो। अगर ब्रेकफास्ट किया है हमने हल्का फुल्का तो 2 घंटे का गैप हो, और अगर जो हमने चाय पी है या हल्का सा कुछ कॉफी वगैरह पी है तो 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में
हम करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, दोनों पांवों को पूर्ण पवन मुक्तासन करते हैं। दोनों पांवों को एक साथ घुटने में से मोड़ते हुए इस तरह से इंटरलॉक कर देना है पांव को। पांव जो है आपके पांव के फीट, पांव के पंजे आगे की तरफ खींचे हुए रहेंगे। ब्रीथ इन, सांस भरते हुए दोनों घुटनों को उठाया है, इसी में होल्ड करना है 5 ब्रेथ। पूरा शरीर स्टमक के ऊपर पूरा प्लेस करना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट करते हुए अभी नेक को उठाना है और ले जाना है घुटनों की ओर। कोशिश करनी है नेक को, गर्दन, मस्तिष्क को दोनों घुटनों की तरफ लगाने की। ब्रीथ इन, सांस भरते हुए सर को नीचे रखेंगे, पांव को भी सीधा कर देंगे। पवन मुक्त आसन मतलब कि हमारे शरीर में से जो अपान वायु है वो हमारे शरीर में से मुक्त होता है। अपान वायु दैट मीन्स टॉक्सिक जिसको बोलते हैं वो। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे। अभी राइट हैंड का सपोर्ट लेकर आराम से आना है। कमर दर्द का एक रीजन ये भी है हमारा उठने का, यानी कि सोने का और सोकर उठने का जो पोस्चर है वो काफी बार गलत होता है। हम काफी बार क्या करते हैं, मेजरली सब लोग यही करते हैं, सोना है ये सो गए, जब भी नींद में से बेड पे से भी उठना है तो ऐसे करके उठ गए बिना सपोर्ट के, ये उठ गए। तो जब भी हम इस तरह से उठते हैं तो हमारा जो है लंबर पे पूरा प्रेशर आता है, इस वजह से कमर दर्द होता है। सबसे पहले मेनली ध्यान रखें कि जब भी हम सोना चाहते हैं लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, फिर सीधे होके सो जाओ। फिर जब भी वापस उठना है अगेन लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, राइट हैंड के सपोर्ट के साथ उठो। तो इससे आपके हार्ट को भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है, प्रेशर नहीं आता है और ना ही कमर पे इतना प्रेशर आता है। तो आपको बैक एक की या तो सर्वाइकल एक की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कंप्लेन्स ही नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट हम लास्ट में करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए या तो हम पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं या तो हम सादी पलाथी में, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा देंगे, नहीं तो बाकी सब सादी पलाथी में बैठेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति किस तरह से करना है, कपालभाति जो है, जो भी अभी हम प्राणायाम करेंगे, कुछ प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर में से टॉक्सिक बाहर निकाल फेंकने का काम करता है और कुछ प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर को कूल डाउन करता है। मेंटली जो भी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनको बिल्कुल हल्के से कूल डाउन कर देता है, हमारे शरीर को भी कूल डाउन करता है। जैसे कोविड का टाइम है तो कोविड के टाइम पे अभी योग का कितना इम्पोर्टेंट है वो हर एक बच्चा, अभी बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक को योग का इम्पोर्टेंट कोविड ने सिखा दिया है। डॉक्टर भी इनफैक्ट प्रेफर करते हैं कि आप योग करो, योग से ही कोविड जाएगा और गया भी है। तो ये जो कपालभाति है वो टॉक्सिक बाहर निकालता है शरीर में से। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 प्रकार की हमारी प्रकृति रहती है, वात, पित्त और कफ। तो कफ को जो निकालने का काम है और पित्त को जो निकालने का काम है हमारे शरीर में से, ये कपालभाति करता है। तो कपालभाति जो है किस तरह से करेंगे, तो सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ धक्का देना है और सांस को बाहर फोर्सफुली निकालना है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग 8 प्रकार के मुख्य प्राणायाम होते हैं। तो 8 प्राणायाम में ब्रेथ की जो टेक्निक है वो हर एक में अलग अलग है। तो हर प्राणायाम में समझ के कि किस तरह से ब्रेथ किसी में फोर्सफुली लेनी होती है, किसी में एक्सहेलेशन जो है वो एक्टिव रहता है, इनहेलेशन पैसिव रहता है। तो कौन से प्राणायाम में क्या एक्टिव है, क्या पैसिव है, कहाँ पे फोर्सफुली सांस भरनी है, कहाँ पे फोर्सफुली छोड़नी है, किस तरह से इनहेलेशन कूल डाउन के साथ लेना है, कितने काउंट में लेना है। प्राणायाम में सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यही रहता है। तो हर एक प्राणायाम को इस तरह से डीपली समझ के करते हैं तभी वो इंटरनली जाके इफेक्ट करता है। बाकी आप पूरा दिन प्राणायाम करते रहो बट उसको सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको वो इफेक्ट नहीं देगा। बट आप सही तरीके से समझ के अगर 2 मिनट भी प्राणायाम कर लोगे तो आपको 100% इफेक्ट देगा। तो अभी समझ लेंगे सबसे पहले कपालभाति किस तरह से करनी है। तो फोर्सफुली पेट को धक्का देना है अंदर की तरफ, तो इसमें सिर्फ आपके सांसों के छोड़ने की आवाज आएगी,
जो आप सांस ले रहे हैं उसकी आवाज आपको बिल्कुल खुद को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, इतना वो पैसिव रहेगा, और जो सांस हम ले रहे छोड़ रहे हैं वो एक्टिव रहेगा। तो किस तरह से करना है, सिर्फ सांस छोड़ने की आवाज आएगी और पेट को अंदर धक्का देते हैं वो, सांस लेने की आवाज पैसिव रहेगी। कंटिन्यू साथ में करते जाएंगे और मुझे सुनते जाएंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि जब भी आप करते हो तो सिर्फ आपका स्टमक का मूवमेंट होगा, बॉडी का मूवमेंट इसमें नहीं रहेगा। या काफी लोग ये करते हैं। तो अपर बॉडी पार्ट का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ स्टमक का मूवमेंट होगा। इसके लिए बैक स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट ओपन रहेगी और आपको शोल्डर पीछे खींचे हुए, आंखें बंद, अपने आप के साथ कनेक्टेड होके ब्रीथ आउट एंड करते जाएंगे। आप करते जाएंगे और मुझे सुनते जाएंगे। अगर जो आपको कमर में दर्द है तो आप बिल्कुल स्लो में जाएंगे। वर्टिगो का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है आपको, तो ये प्राणायाम जो है कपालभाति बिल्कुल स्लो में करेंगे, एकदम स्लो। वैसे तो मना ही किया जाता है, इन लोगों को नहीं करना चाहिए, बीपी वालों को, वर्टिगो वालों को, हार्ट डिजीज वालों को, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो हमारे शरीर में से टॉक्सिक को बाहर निकाल फेंकता है। कफ जो भी आपके शरीर में जमा हुआ होता है सारे कफ को बाहर निकाल फेंकता है आपको। तो बिल्कुल आराम आराम से इसको करें और बहुत ज्यादा धक्का देकर ना करें, तो वो आपको इंटरनली कोई डैमेज नहीं करेगा और आपको फायदा ही करेगा। इसके बाद कपालभाति के बाद हम करते हैं अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया किस तरह से करनी है, सेम ब्रीथ इन फोर्सफुली लेना है, फोर्सफुली ब्रीथ को बाहर निकालना है, ब्रेथ को छोड़े हुए रखना है। अभी ना हम ब्रेथ लेंगे ना खाली करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। पेट को अंदर की तरफ धक्का दिया हुआ है और खाली पेट को अंदर बाहर मूवमेंट देंगे। इसमें भी हमारा शोल्डर मूव नहीं होगा, सिर्फ पेट मूव होगा। करते जाएंगे और सुनते जाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये भूखे पेट करें, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका पेट साफ आया हुआ होना चाहिए, तो ही आपको इफेक्ट करेगा। अगर जो आप सुबह में वॉशरूम अच्छे से गए नहीं है, स्टूल पास अच्छे से नहीं हुआ है और आप इसको अगर करते हैं तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट इससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो रहेगा। डाइजेशन सिस्टम को ये एक्टिव करते हैं। अगर जो आपको खाना खाने के बाद में आदत है खाने को हजम करने की, या एसिडिटी की वजह से आप दवाइयां खाते हैं, तो ये अग्निसार और कपालभाति ये दोनों रेगुलर करने से एसिडिटी आपकी एकदम से निकल जाएगी, डाइजेशन भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये बहुत ही अच्छा करता है। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे कि सबको पता है अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 नाड़ियां हैं। बेसिकली तो हमारे बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, गेरन संहिता के हिसाब से और हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। बट अभी हम जो बात करेंगे 2 नाड़ियों की सिर्फ बात करेंगे। 2 नाड़ियां दैट मीन्स हमारे 2 नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल दैट मीन्स ईड़ा नाड़ी, राइट नॉस्ट्रल दैट मीन्स पिंगड़ा नाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रल दैट मीन्स कि हमारी इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। चंद्र उसके नाम के हिसाब से ठंडा, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है ईड़ा नाड़ी वो हमारी ठंडक वाली है, ठंडक देती है शरीर को। राइट नॉस्ट्रल यानी कि उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, उनके नाम के हिसाब से ये नाड़ी भी हमारी गर्म है। तो इन नाड़ियों का बैलेंस, हमारा पूरा शरीर जो है वो नाड़ियों से बना हुआ है, तो नाड़ियों का बैलेंस इन 2 नाड़ियों से ही, जो हम सांस इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो इन 2 नाड़ियों से ही हमारे पूरे शरीर का नाड़ियों में बैलेंस रहता है। इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम कोविड पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट इसमें हम कुंभक नहीं करेंगे। इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। बट इसमें सांस का पैटर्न कैसा रहेगा, इतना स्लो लेना है कि आपको खुद को भी अपनी आवाज सांसों की भरने की और खाली करने की सुनाई नहीं देनी चाहिए।
बहुत ही आराम से इनहेल। इससे पहले मुद्रा समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड से इस तरह से ध्यान मुद्रा लेनी है, घुटने पे रखना है। राइट हैंड से पहली जो 2 उंगलियां हैं हमारी, उसको हमारे इस तरह से पाम पे इंटरलॉक करनी है। ये हमारी प्रणव मुद्रा हो गई। इसको रखेंगे हमारे दोनों नॉस्ट्रिल के पास में। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, बहुत ही आराम से और स्लोली। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, बहुत ही आराम से और स्लो। डीप एक्सहेल। अभी उसी नॉस्ट्रिल से हमें डीपली इनहेल करना है। राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से डीपली एक्सहेल करेंगे। वन मोर टाइम, डीपली इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। सांसों की आवाज हमें खुद को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, इतनी धीमी। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। कोविड पेशेंट के लिए ये प्राणायाम इसके लिए इम्पोर्टेंट माना गया है। कोविड की रिकवरी में ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये प्राणायाम करने से हमारे नाड़ियों में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो इमीडिएटली सप्लाई होता है। तो जो बॉडी में हम वीकनेस महसूस करते हैं, वो वीकनेस को वो स्ट्रेंथनिंग देता है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है। नाड़ियों में जो टॉक्सिक फंसा हुआ रहता है, वो टॉक्सिक को बाहर निकाल फेंकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हर कोई कर सकता है और कभी भी कर सकता है। अगर आपने खाना भी खाया है और इमीडिएटली आपको लगता है बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है मुझे, या वीकनेस लग रही है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो आप दोनों नॉस्ट्रिल को, या ऐसे ही सिर्फ नॉस्ट्रिल के साथ नहीं, नाड़ियों के साथ नहीं, दोनों हाथों को घुटनों पे रख के आंखें बंद करके डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की एक्सरसाइज। तो इमीडिएटली जो आपको वीकनेस लग रहे हैं, या काफी बार चक्कर आते हैं, काफी बार एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाने से छाती में थोड़ा सा चेस्ट पेन रहता है या क्या, उसको ही इमीडिएटली रिलीव कर देता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट हम लास्ट में करेंगे 3 ओंकार, और ओंकार का एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेंगे। उसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से ध्यान मुद्रा बनाकर घुटने पे प्लेस कर देंगे। दोनों घुटनों पे प्लेस कर देंगे हाथों को। हाथ अगर इस तरह से बाहर हैं तो उसको बिल्कुल रिलैक्सेशन की पोजीशन में, शोल्डर भी एकदम रिलैक्स्ड, पर कमर स्ट्रेट रहेगी, कमर रोल की हुई नहीं, गर्दन सीधी, आंखें बंद हल्के से। अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, उधर ले आएंगे। आंखें बंद करके अपना ध्यान जब भी हम दोनों आईब्रोज के बीच में ले आते हैं, तो एक बिंदु दिखाई देने लगता है। उस बिंदु की ओर ध्यान ले जाएंगे। उस बिंदु से धीरे से ओंकार के चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बिंदु नहीं दिखाई देता है तो ओंकार के चित्र को इमेजिन करना है अपनी आंखों के समक्ष, बंद आंखों से। उनके पावर्स को, उनकी पॉजिटिविटी को फील करना है। मस्तिष्क से लेके पांव की उंगलियों तक संपूर्णतः उस ओंकार के वाइब्रेशंस को, उनकी ऑरा को, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर व्याप्त करना है। कुछ पलों के लिए अपनी बाह्य सुंदरता को हम भूल जाएंगे। हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा कद, हमारा आकार, सब कुछ कुछ पलों के लिए भूल जाएंगे और अपना ध्यान अपने आप के साथ आंतरिक, इंटरनली ले जाएंगे। वो एक चीज जो हमें चलाती है, हमारे शरीर को चलाती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसकी ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। उस आत्मा को
अगर जो ये शरीर ना मिले, वो शरीर के बाहर निकल जाए, तो हमारा रूप, रंग, कद, आकार, हमारा पद जो अभी हम हैं जहाँ पे, वो कोई भी काम का नहीं रहता है। पंच महाभूत में ये शरीर विलीन हो जाता है। तो कुछ पलों के लिए इस नष्ट शरीर को, नाशवान शरीर को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ इंटरनली कनेक्टेड होते हुए लंबी और गहरी सांसें भरते जाएंगे और खाली होते जाएंगे। जिस तरह से हमारा शरीर सुंदर है, क्या हमारा आंतरिक शरीर भी उतना ही सुंदर है जितना बाह्य शरीर सुंदर है? शरीर के अंदर जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स, हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स, इनकी ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। क्या हम आंतरिक तरीके से हेल्दी हैं, या कहीं पे हमारे दर्द है, तनाव है? फिजिकली हेल्थ के साथ साथ क्या हम मेंटली भी इतने ही रिलीज हैं, हेल्दी हैं? स्ट्रेस से, एंजाइटी से, एंगर से क्या हम हेल्दी हैं? क्या ये सारी नेगेटिव बातें हमें इफेक्ट नहीं करती, या हम बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं इनसे? इमोशनल हेल्थ क्या हमारा हेल्दी है? अपने आप के साथ ये सवाल करते जाएंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कितने हेल्दी हैं। किसी का कुछ बोलने से क्या हमें गुस्सा आ जाता है? क्या हम अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं? क्या हमारा इमोशनल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग है या वीक है? अपने आप से क्वेश्चन करेंगे। क्या हम उस परमात्मा के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं? हमारे इष्ट देव के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं या नहीं? स्पिरिचुअल हेल्थ को भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। जितना हम बाह्य सुंदरता पे ध्यान देते हैं, आज अपने आप से ये वादा करेंगे, उतना ही हम शरीर की आंतरिक सुंदरता पे ध्यान देंगे, इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देंगे, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे और स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। उसको स्ट्रेंथनिंग देनी है, स्ट्रॉन्ग बनाना है थ्रू द प्राणायाम एंड थ्रू द मेडिटेशन। इसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे थ्रू द ओमकार। एक लंबी और गहरी सांस भरेंगे और ओमकार के पॉजिटिव वाइब्रेशन को मस्तिष्क से लेके पांव की उंगलियों तक संपूर्णतः फील करेंगे। 3 बार ओमकार करेंगे, एक लंबी और गहरी सांस भरेंगे और ओमकार शुरू करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, हेड डाउन करेंगे, हमारे माता पिता, हमारे इष्ट देव और हमारे गुरुजनों को वंदन करके उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वो हम पे और हमारे परिवार वालों पर विद्या, ज्ञान, संस्कार और स्वस्थता का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। पाम इन करेंगे, घर्षण देंगे दोनों हथेलियों को। प्राप्त ऊर्जा को क्रमशः पूरे शरीर को प्रदान करनी है। इसी विश्वास के साथ मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे अणु अणु में स्वस्थता और प्रसन्नता फैल रही है। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाकर मुस्कुराते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर जो आपने पद्मासन लिया है तो पद्मासन को खोल देंगे, थोड़ा सा पांव को मूवमेंट दे देंगे एंड रिलैक्स। थैंक यू सो मच सीमा मैम। Thank you so much. I was so much, involved in the session that I didn't move even for a while. एक मिनट में हिली नहीं हूँ, बहुत बढ़िया लगा। और ऐसा ट्रेनर मिल जाए तो मैं सोचती हूँ कि अपनी हेल्थ को ठीक रखना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज। तो आपने इतना टाइम हमें दिया और वो भी वॉलंटरली, तो मैं ये सब सोच रही हूँ कि उसके लिए कितना जो है डेडिकेशन होना जरूरी है, कमिटमेंट होना जरूरी है। मैं आपकी बहुत बहुत जो थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपको इस तरह से आज का सेशन ले पाई और आपको योग के बारे में थोड़ा सा बता पाई, आसनास के लिए बता पाई। थैंक यू सो मच। और मैं प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक्स वंस अगेन। और हमें आगे भी बच्चों के लिए, क्योंकि जो माहौल चल रहा है बहुत ही स्ट्रेसफुल है, हाँ जी, तो जब भी होगा तो वी विल बी इन टच। तो मैं आपको बताती रहूंगी, तो हाँ जी, आप जो है हमारे बच्चों को गाइड करते रहना। हाँ जी। कोविड के रिगार्डिंग भी कुछ प्राणायाम का स्पेशल रखना है, तो प्राणायाम के रिगार्डिंग, स्ट्रेस के रिगार्डिंग कुछ सेशंस रखने हैं, तो हम आगे भी इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऋषिका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। And I now invite Nikita to propose formal vote of thanks. Yes, ma'am. Thank you so much, Rishika ma'am, for such a wonderful session. Thank you so much to you also. Growth is never by mere chance. It is the result of forces working together. With this wise thought, on behalf of our renowned institution, Kirorimal College, University of Delhi, I would like to propose a vote of thanks to all those who contributed to the success of this session. At the outset, I thank our chief guest for conducting the session so well. Our heartfelt thanks to our site supporting pillars, Professor Vibha Singh Chauhan, our principal, and Dr. Seema Joshi, staff coordinator, Kirorimal College Alumni Network, for their continuous and enthusiastic support. A special thanks to 8 members of Alumni Network, especially Abhimanyu, Harshit, Ritik, and Nitesh. We are also thankful to Mudit, ex-president FIC, Rachit, current president FIC, and his team for their contributions. I would also like to express my appreciation to all the participants for their time and attention. With these warm words, we move to the end of today's session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, Nikita. Thank you so much, Rishika ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye-bye. Bye, take care.